تحسین رازی ہیں، بالکل اور یہ وہ پہلے میں کہہ سکتی ہوں ولاگر ہیں جنہوں نے K2 کو اپنے ڈرون کیمرے سے پوری بالکل دنیا کی جو اس کی خوبصورتی تھی وہ دکھائی. اور ان کی اگر آپ پروفائل پہ جائیں، انسٹاگرام پہ جائیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آئی تھنک میرے پاس الفاظ کم ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پاکستان کی خوبصورتی کو پوری دنیا تک پہنچایا ہے. سب سے پہلے تو السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ٹورزم پہ یقیناً ہمیں آپ سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن آغاز میں اس سانحے کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. آپ نے ابھی تک جو دیکھا ہے، پرکھا ہے، کس کی غلطی لگتی ہے؟ وکٹم بلیمنگ کی طرف میں نہیں جا سکتی، لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیملیز کا بھی قصور ہوتا ہے، وہ بہت آگے چلی جاتی ہیں. آپ کو کس کا قصور لگتا ہے؟ انتظامیہ کا، گورنمنٹ کا، فیملیز کا، ہوٹل مالکان کا؟ کون کون اس قصور میں شامل ہے؟ وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ جو آپ نے اس موقع پہ مجھے بات کرنے کے لیے بلایا. یہ اس سال یا بلکہ سوات کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا سانحہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو ہوا ہے، جس میں ایک فیملی جو 17 بندوں پہ مشتمل تھی وہ دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ پانی میں، دریا میں بہہ گئی، اور ان کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا. تو اس میں سوشل میڈیا اور باقی میڈیا پہ لوگ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. بہرحال جو سب سے عام بات جس کی طرف کوئی بھی بندہ جس کے بارے میں بات نہیں کر رہا کہ یہ سیلاب یا یہ یہاں پہ پانی آیا کیسے یا کیوں آیا. تو میں نے ایک ویژولس بھی شیئر کی تھیں آپ کے ساتھ، اگر وہ ہو سکے تو آپ چلائیں. اس میں یہ تھا کہ جو دریا کا ایکچول روٹ تھا جس پہ دریا کئی سالوں سے بہہ رہا ہے، اس کو ایسے کیا گیا کہ ڈائیورٹ کر دیا گیا ایک الگ روٹ میں، اور وہاں پہ زمین کو خشک کر کے وہاں پہ لینڈ مافیا نے وہاں پہ زمین آہستہ آہستہ قبضہ کرنا شروع کر دی. تو جو ٹورسٹ تھے ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ یہاں پہ یہ دریا کا ایکچول راستہ ہے. تو بارشوں کی وجہ سے دریا کا لیول ہمیشہ رائز ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو بند تھا، جو ڈائیورژن وال تھی، وہ ٹوٹی اور اچانک ایک دم پانی آیا، اور فیملیز کو پتہ نہیں تھا، اور ان کے ارد گرد پانی جمع ہو گیا، اور وہ پانی سے نکلنے ان کے لیے ناممکن ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ ایک ایک کر کے ڈوب گئے. اب اس میں جو دوسری بات یہ تھی کہ کون اس کا قصوروار ہے. تو میرے خیال میں اس کا قصوروار وہ لینڈ مافیا ہے جنہوں نے دریا کا روٹ. جی، دریا کا روٹ جو ہے وہ چینج کیا. اور نیلم یہ بات جو ہے بالکل وہاں جانے والے افراد جنہوں نے مشاہدہ کیا بالکل. وہ بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. خود سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے ڈیٹیل میں آ رہی ہے. لیکن سوال وہی ہے نیلم، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، آپ کوئی فیملی کو بلیم کر رہا ہوگا، کوئی انتظامیہ کو بلیم کر رہا ہوگا. آپ بھی یہاں پہ جو ٹورسٹ مقامات پہ جاتی ہیں وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو فیسلٹیز ہوتی ہیں، خاص طور پہ جب ہم سی سائڈ پہ یا بیچز وغیرہ پہ جاتے ہیں بالکل. تو بہت طویل بیچ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ وہ مسلسل چکر لگائے جاتے ہیں کوسٹ گارڈ کی طرف سے، اور لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ حد سے آگے نہیں جانا. بہت شکریہ تحسین، آپ گفتگو کر رہے تھے لینڈ مافیا کی، آپ نے بات کی. یہ بہت ہم ایک اندوناک واقعہ ہے، ایک دردناک واقعہ ہے. اب اس کے اوپر کیا ماضی کی طرح، کیونکہ ہر واقعے کے بعد ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات کمیٹیاں بھی بن جاتی ہیں، بات بھی کی جاتی ہے. آپ نے یہ چیز سامنے رکھی، سوشل میڈیا پہ بھی کچھ لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی کمیٹی بنے، وہ بات کرے، تعین کرے، لیکن اس کے بعد ایک خاموشی چھا جاتی ہے. کوئی نیا واقعہ خدا نخواستہ ہو، اس کا انتظار کیا جاتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے چونکہ سوات کی تاریخ میں یہ ایک بڑا واقعہ ہے، پہلی بار ہوا اتنا بڑا، پورے شاید پاکستان کے لیے بھی دردناک واقعہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سٹیپ لیا جائے گا، کوئی قصورواروں کا تعین کیا جائے گا، کسی کو سزا ملے گی، کچھ ہم بہتری دیکھیں گے؟ پچھلے 2 دنوں سے جب سے یہ واقعہ ہوا ہے تو گورنمنٹ ایک برائے نام کریک ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے انہوں نے، کہ جو ہوٹلز دریا کے کنارے پہ بنے ہوئے ہیں ان کو وہ ڈیمولش کر رہے ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کو کر رہے ہیں جن کا سیاسی رسوخ اتنا نہیں ہے. تو یہ میرے خیال میں یہ جو ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے، یہ صرف انتظامیہ کی نئے چھپانے کی وجہ سے ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے ہوٹلوں کو مسمار کر رہے ہیں. ایکچولی تو انویسٹیگیشن تو یہ ہونی چاہیے کہ جب یہ ہوٹلز بن رہے تھے، پاکستان میں ایک ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے کہ دریا کے کنارے 200 فٹ تک آپ کوئی کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. تو جب یہ ہوٹلز بن رہے تھے تو ان کو این او سی جو تھی وہ ضلعی انتظامیہ جاری کرتی ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پلیٹ فارم سے. تو وہ این او سیز کس نے جاری کیے، کس نے وہ رشوت لے کے، کس نے وہ پیسے لے کے این او سیز جاری کیے. تو جب تک جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے ان کو
परमिशन दी होटल्स बनाने की और दरिया के इतने करीब जाके रिवर बेड पे कंस्ट्रक्शन करने की, जब तक उनका तयन नहीं होगा तो चीज़ें दुरुस्त में नहीं जाएंगी। अच्छा, ये भी बताइए कि जब इतने करीब इन्होंने चले होटल्स बनाए और इनको इजाज़त भी मिली, यकीनन ज़िले इंतज़ामिया इसमें मुलविस होगी, इन्होंने क्या कोई इंतज़ाम रखा? क्या इनके पास कोई ऐसे वहाँ पे मशीनरी, कोई बोट्स, कोई लाइफ गार्ड्स, कोई ऐसी रेस्क्यू टीम्स मौजूद थीं? क्योंकि पानी का बहाव तो कभी भी ज़्यादा हो सकता है। इनको भी पता है कि दरिया के करीब इन्होंने एक चले अब लोगों के लिए नहीं, टूरिस्ट के लिए नहीं, अपने ही बिजनेस के सिक्योरिटी के लिए और सेफ्टी के लिए इन्होंने कुछ रखा हुआ था। और फिर जो दूसरा गवर्नमेंट को सब लोग ब्लेम करें, गवर्नमेंट का जो रिस्पांस था वो कितना देर से पहुंचा, कितनी ताख़ीर थी उसमें, और क्या हेलीकॉप्टर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? जो आपने बात की ना कि पानी किसी भी वक्त ज़्यादा हो सकता है, तो ये जो पानी है, चूँकि हम खुद नॉर्थ में जाते हैं तो समर्स में पानी ये नॉर्मल है। ये स्वात की हिस्ट्री में ये कोई नई बात नहीं थी, ये नोटिसेबल भी नहीं था। ये पानी अपनी उस रूटीन के मुताबिक था जैसा बारिशों में होता है। पानी अचानक जो उनके इर्द-गिर्द आया वो पीछे से सेफ्टी वाल टूटने की वजह से आया, और सेफ्टी वाल उन्हीं माफिया ने बनाई थी जिन्होंने यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। दूसरी बात ये कि सरकारी मशीनरी कहाँ थी? तो सरकारी मशीनरी जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, या वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए जिसको हम कहते हैं, या वो रेस्क्यू 1112 है, तो ये दोनों इदारे अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे मौजूद नहीं थे, और लोकल्स के मुताबिक ये लोग तकरीबन कोई 1.5 घंटे तक वहाँ पे फंसे रहे और वो इस इंतज़ार में थे। अब इससे ज़्यादा पेनफुल बात क्या होगी कि एक फैमिली जो 17 बंदे हैं, जिसमें बच्चे, बूढ़े और वो सारे खड़े हैं, और वो इस इंतज़ार में हैं कि इस निज़ाम या स्टेट का कोई मशीनरी आएगी जो हमें हेल्प करेगी, और आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक बंदा दरिया में जाता रहा, और सारे आखिर में दरिया में चले गए, और स्टेट की तरफ से कोई भी इस तरह की कोई हेल्प, कोई मशीनरी, कोई हेलीकॉप्टर तो दूर की बात, वहाँ पे कोई रेस्क्यू के कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसे इदारे भी नहीं थे जिनका काम ही है लोगों को रेस्क्यू करना इस तरह के डिज़ास्टर में, वो नहीं थे वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा तहसीन, ये वाक़या तो हो गया और इसके ऊपर जैसे आप बता रहे हैं कि दिखाने के लिए कुछ कार्रवाइयाँ जारी हैं, मीडिया पे भी ये हाईलाइट हो रहा है। नीलम बता रही थी जिस तरह से, और हम जानते हैं कि ये जो मौसम होता है पूरे पाकिस्तान से लोग जो हैं वो शुमाली इलाका जात की तरफ रुख करते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ दरिया हैं, आप इसकी दरिया सवात की बात कर लें, दरिया कुनहार की बात कर लें, तो बहुत सारे स्पॉट्स हैं, बहुत सारे शहर हैं। कैसे यकीनी बनाया जा सकता है कि खुदा ना खास्ता कल को किसी और जगह हम इस तरह के मनाजिर या इस तरह से रेलिवेंट मनाजिर जो हैं वो नहीं देखेंगे, क्योंकि बारिशों का भी हमें मालूम है इस मौसम में होनी ही होती हैं। सैलाब जो है वो भी उसकी सूरत हाल, वो तो ख़ुद जो मैदानी इलाके हैं, पंजाब की आप बात कर लें, सिंध की बात कर लें, वहाँ तक जो सैलाब है वो पहुँचता है, वहाँ पर डेवलप होता है। तो ये ख़ास तौर पर जो नॉर्दर्न एरियाज़ है, अब क्या करना चाहिए कि खुदा ना खास्ता दीगर जगहों पर कोई ऐसी सिचुएशन हमें देखने को ना मिले? देखिए जी, दरिया तो मतलब जितनी ज़मीन की हिस्ट्री है उस वक्त से दरिया बह रहे हैं ना, और दरियाओं का अपना एक ख़ास डेडिकेटेड रास्ता है। जब आप उस रास्ते को ब्लॉक करेंगे तो डाउन वैलीज़ में सैलाब आएगा। आपने कुनहार की बात की, कुनहार का रिसेंटली हमने सुना कि महांडरी का पूरा दरिया जो है, पूरा जो शहर है वो दरिया की नज़र हो गया। तो अब महांडरी की अगर आप बात कर रहे हैं जो कुनहार रिवर पे है, तो महांडरी पे भी सारी इलीगल इंक्रोचमेंट्स थी जिसने दरिया का रुख ब्लॉक किया, और फिर जैसे ही पीछे से पानी का प्रेशर बढ़ा और वो सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी साथ बहा के ले गया, और डाउन वैलीज़ में सैलाब आया। स्वात की मिसाल लें, अब सैलाब ने या पानी ने तो सदियों से वो गुज़र रहा है और उसने आगे भी गुज़रना है। जब आप उसके रास्ते में इंक्रोचमेंट्स कर दोगे, जब आप उसके रास्ते में उसका पाथ नैरो कर दोगे, डाइवर्जन वॉल्स बनाओगे, तो उसने तो फिर कुदरत तो जो है वो अपना तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन तो कुछ सालों बाद करती है, और उस तजावज़ात में फिर वो लोग भी जाते हैं जिनका कसूर कोई भी नहीं होता, और वो गरीब, उनकी प्रॉपर्टीज़ और वो सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो इसका हल ये है कि दरिया के रास्ते में जो इंक्रोचमेंट्स हैं या वो प्रॉपर्टीज़ जिन्होंने दरिया का पाथ नैरो किया हुआ है, उन सब को ख़त्म किया जाए बग़ैर किसी सियासी असर रसूख के। अभी स्वात में भी जो आज की ख़बर है वो यही हो रहा है कि जो गरीब होटल मालकान थे उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो गया है, बहरहाल जो ऐसे लोग जिनका कोई सियासी असर रसूख था उनके खिलाफ कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ।
जैसे आप कह रहे हैं कि वो तो डाइवर्जन का मसला है, तो वो जब तक ख़त्म नहीं होगी तो फिर तो ये मसला सॉल्व भी नहीं हो सकता। ये पाकिस्तानी वो कौम है कि जो डैम्स नहीं बनने देती मुख्तलिफ़ जगहों पे कि हमारे घर डूब जाएंगे और पूरी सियासत शुरू हो जाती है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये दरिया के इतने करीब होटल्स कैसे बन रहे हैं और उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आता कि ये हमारे शहर डूब जाएंगे जब डाइवर्जेंस लग रही होती हैं, या हमारा कारोबार डूब जाएगा। उस वक्त लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते यहाँ पे? जी, इसमें जो होटल्स बन रहे होते हैं वो भी बग़ैर जो इंतज़ामिया है, सियासी और रसूख और ज़िली इंतज़ामिया की मिल-भगत के बगैर नहीं बनते। अब कलाम की मिसाल लें, कलाम में जिस फ्लड ने होटल बहा के लेके गए, उसी पार्टी ने वहाँ पे दोबारा होटल्स बनाए और उसी डिप्टी कमिश्नर और उसी ज़िली इंतज़ामिया की इजाज़त के साथ बनाए। अब वो उसमें क्या-क्या कौन-कौन से फाइनेंसेस इन्वॉल्व थे, कौन कितनी रिश्वतें इन्वॉल्व थी, वो अगर सही प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो तभी पता चल सकता है कि इसमें कौन-कौन से बंदे इन्वॉल्व हैं जो बाकी लोगों के भी नुकसान का बायस बन रहे हैं। सैलाब आने की वजह से ना सिर्फ जानी नुकसान होता है बल्कि लॉन्ग टर्म पे लोगों का इतना नुकसान होता है कि अब मैदानी इलाकों में जब सैलाब आते हैं तो पानी खड़ा रहता है 2-3 दिन, फिर उसके बाद वो उसका लेवल डाउन हो जाता है। पहाड़ी इलाकों में जब सैलाब आता है तो वो ज़मीन भी साथ काट के जाता है और वो फसलें भी तबाह करता है और वो मतलब 30-35 साल तक आप वहाँ पे इरिगेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी ज़मीन काट के ले जाते हैं और नीचे सिर्फ पत्थर और बोल्डर्स रह जाते हैं। तो इसकी वजह से लोकल्स का भी बहुत नुकसान होता है। अब चंद लोगों की गलती की वजह से पूरी एक कम्युनिटी, पूरे एक शहर, पूरे एक इलाके का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल तहसीन, अच्छा आप चूँकि ट्रैवल व्लॉगिंग भी करते हैं, जो सैर व सियाहत है वो ख़ुद भी करते हैं, लोगों को भी उससे रूशनास करवाते हैं, पाकिस्तान में क्या क्या कुदरत ने ख़जाने दिए हुए हैं, उस हवाले से भी बात करते हैं। कुछ ये भी बताइए कि लोगों में सेफ़ ट्रैवल जो है उसका शऊर किस तरह से जो वो बेदार किया जा सकता है, उनको कैसे बताया जा सकता है? ठीक है, अगर कहीं भी हुकूमत फ़ेल हो रही है, इंतज़ामिया फ़ेल हो रही है, लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं वो कुछ नहीं कर पा रही, लेकिन इस वाक़े से हट कर भी चूँकि फैमिलीज़ जाती हैं, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, अब बुज़ुर्ग अफराद हैं, ख़वातीन हैं, तमाम लोग जो हैं वो रुख करते हैं, तो वो इनफरादी तौर पे इस तरह से जब ट्रैवल कर रहे हों या किसी ग्रुप के साथ कर रहे हो तो क्या चीज़ें जो हैं वो पेश नज़र रखनी चाहिए कि आपका जो एक आप गए इस मकसद के लिए कि वहाँ पे कुछ आप तफरीह करेंगे, कुछ वहाँ पे आप इंजॉय करेंगे, तो खुदा ना खास्ता वो किसी ट्रेजिडी में ना तब्दील हो जाए। तो इस हवाले से आपके ख्याल में क्या इनफरादी तौर पे इन लोगों को कुछ इक़दाम करने चाहिए? जो वेदर के बारे में आप लेटेस्ट अपडेट्स वो लेके आप जब भी सफ़र करें, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं मुल्क में, वो वेदर की अपडेट लाजमी लेके सफ़र करें। जब भी पहाड़ों में बारिश होती है तो लैंडस्लाइड के चांसेस होते हैं, फ्लैश फ्लड्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसकी तरफ से जो लोग खुद भी टूर प्लान कर रहे हैं उनको भी इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और जो मुतल्लिका इदारे हैं, महकमा मौसमियात हो गया या NDMA, वो गाए बगाए अलर्ट्स तो जारी करते रहते हैं, बहरहाल वो एक ख़ास तबके से ज़्यादा आगे जो है वो लोगों तक मैस लेवल तक प्रोपोगेट नहीं कर पाते। तो उसको नेशनल लेवल पे, नेशनल मीडिया पे इस तरह प्रोपोगेट करना चाहिए कि किन दिनों में सफ़र प्लान करना चाहिए, किन दिनों में सफ़र अवॉइड करना चाहिए। फिर डोमेस्टिक टूरिस्ट चूँकि तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारे जो हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे इतनी कैपेसिटी नहीं होती, ख़ासकर जो आम जो पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं, ईद के मौके होते हैं या बाकी इस तरह के मौके, तो प्लेसेस सारी ओवर क्राउडेड हो जाती हैं, जो कि बाद में जाके लोगों के लिए मसाइल पैदा करती हैं। ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, फ्यूल की शॉर्टेज हो गई, अकोमोडेशन की शॉर्टेज हो गई। तो इसकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ डोमेस्टिक टूरिज़म पे कुछ चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि ख़ास तादाद से ज़्यादा लोगों को किसी एक स्पेसिफिक एरिया में उससे जाने ना दिया जाए, जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही जाने दिया जाए। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पिछले दिनों हमने एक गाड़ी देखी थी, शायद गालिबन सियालकोट के लड़के थे, उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद फिर एक नई डिबेट भी जन्म ली कि जो अगर आप ऐसे इलाकों में जा रहे हैं तो वहाँ के जो मकामी ड्राइवर्स हैं वो इस्तेमाल करें, क्योंकि जो शहरों में रहने वाले हैं उनको शायद उन सड़कों पर ड्राइव करना नहीं आता, या रेस्ट कर के ड्राइव करें। आपने डोमेस्टिक टूरिस्ट की बात की, अब तो बहुत बड़ी तादाद में इंटरनेशनल टूरिस्ट भी पाकिस्तान आ रहे हैं, तो क्या
उनको कोई जब वो आते हैं कोई हुकूमती सतह पर कोई गाइडलाइंस दी जाती हैं, या अगर वो उनके लिए कोई हेल्पलाइंस होती हैं अगर वो इन इलाकों में हो और वो किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में हो, या वो टोटली खुद ही पे रिलाय कर रहे होते हैं या फिर ट्रैवल एजेंसीज पे रिलाय कर रहे होते हैं, या जिस होटल में उनका स्टे हो? सबसे पहली बात जो आपने की कि पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग का तजर्बा नहीं होता, तो वाकई ये बात सच है कि मैदानी इलाकों में ड्राइविंग के पैरामीटर्स और होते हैं, और पहाड़ी इलाकों में चूँकि बहुत ज़िगज़ैग कर्वी रोड्स होते हैं, शार्प टर्न्स होते हैं, ब्लाइंड टर्न्स होते हैं, और चढ़ाइयाँ होती हैं, तो उसमें ड्राइविंग के पैरामीटर्स और हैं। तो जब तक आपको इतनी स्किल ना हो ड्राइविंग की, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप लोकल ड्राइवर्स को हायर करें। दूसरा ये है कि चूँकि वो बहुत शार्प टर्न्स होते हैं, और उसमें आपको अटेंटिव रहना हर वक्त बहुत ज़रूरी होता है, और सफ़र चूँकि बहुत लंबे हैं, 10-10, 12-12, 15-15 घंटे के सफ़र है, अगर आप उनको नॉन स्टॉप करें तो वो तो मोटरवे पे भी हादसा होने के चांसेस हैं, और पहाड़ी इलाकों में तो और ज़्यादा है कि क्योंकि वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं होती। दूसरी जो आपने बात की कि जो हादसात होते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, तो उसमें कनेक्टिविटी का कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। जिस तरह आपने सियालकोट के लड़कों की भी बात की, तो उनके साथ हादसा हो गया, बहरहाल बाद में जो इत्तलात आई वो ये आई कि वो हादसा होने के बाद भी ज़िंदा रहे, और वो काफ़ी टाइम तक नंबर डायल करते रहे कि हमें कोई हेल्प करे, या हम अपनी पोजीशन किसी को बताएं, या कोई हमें आके रेस्क्यू करे। बहरहाल वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह का नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क नहीं था, और अगर होता भी है तो बहुत आबादी वाले इलाकों में होता है, और इस तरह के वीरान इलाकों में जहाँ पे आबादी भी नहीं होती और रेस्क्यू का भी कोई बंदोबस्त नहीं है, और ऊपर से नेटवर्क भी नहीं है, तो उस पर फिर उसका ज़िम्मेदार एक आम इंसान में है, या आप नहीं हो सकते, वही गवर्नमेंट हो सकती है जिसका काम नेटवर्क प्रोवाइड करना है। और जो उसके बाद आपने बात की फॉरेनर्स की, तो फॉरेनर्स को गाइडलाइन कोई इतनी ख़ास नहीं होती गवर्नमेंट लेवल पे हमारी कोई इस तरह की। अनफॉर्चुनेटली टूरिज़्म हमारा जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा है, पाकिस्तान में टूरिज़्म पोटेंशियल है जिसकी वजह से टूरिज़्म इंक्रीज़ कर रहा है। बहरहाल अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह का कोई नेशनल लेवल पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिससे वो गाइडेंस हासिल कर सके। सही, बहुत शुक्रिया तहसीन राजी, आप हमें इस क्राइसिस इस सानी के हवाले से आगाह कर रहे थे।